in this lecture we are going to see how to find inverse of a matrix, inverse of 3 by 3 matrix using elementary transformation method. How to find inverse of a matrix by elementary transformation method. Okay, and which matrix is this? It is a 3 by 3 matrix. It is a 3 by 3 matrix. See here, 3 rows, 3 columns. Okay, now I have already told you in a last lecture how to find a matrix, how to apply elementary transformation on 3 by 3 matrix. So I have given one example. Suppose, see, this is your 3 by 3 matrix. So what is the root? To find inverse we have to make this entry A as 1. जो यहाँ पे first entry रहेगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा? 1. Then this entry A21, this is A21, second row first column. This entry you will do convert it in 0 using row transformation और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आप कॉलम के लिए जा रहे हो तो अलग रूल है, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप जाओगे तो वो बेटर रहेगा. सो इट इज़ इक्वल टू सी, it is like this, the root is like this, the root is like this. Okay, so what you will do here, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, you will convert the matrix A to identity matrix. We have to convert the matrix A to identity matrix using row transformations. Using row transformations we have to convert the matrix A to I. Okay, इसके पहले वाले वीडियो आप एक बार देख लेना कि हाउ टू फाइंड इनवर्स, क्या एग्जैक्ट उसका रूल क्या है. ओके, सो उसके आगे का ये अभी कंटिन्यूशन है, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ओके, सो बेसिक थिंग इज वी हैव टू अप्लाई दिस रूट. वी हैव टू अप्लाई दिस रूट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट मेक दिस एंट्री एज 1, देन 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, तो सो आपका जो इन्वर्स है वो कम स्टेप में आपको स्टेप्स लगेंगे और इजीली आपको वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स. हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ओके, सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. So solution, what is the first step? First step is find the determinant of the matrix, whether it is invertible or not, whether the matrix inverse exists or not. 0 1 3, so it is equal to 2 into, see how you will find the determinant. first entry यहाँ पे जो है वो रो और कॉलम निकाल दो, बाकी जो रो कॉलम बच गए उसका डिटर्मिनेंट लेने का. सो इट इज़ 1 into 3, 3 minus 0. second entry with minus sign, minus of 0 and 0 into anything, 0 into कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहने दो. यहाँ पे एंट्री तो 0 ही आने वाला है, आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे आगे ब्रैकेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. थर्ड एंट्री एज इट इज़, सो माइनस ऑफ 1 into, remove this row and column in which minus 1 is there, so 5 into 1 5 minus 0. ओके, सो ये हो गया आपका 3 by 3 डिटरमिनेंट. 2 into 3 minus 0 minus 1 into 5, so it is equal to 2 into 3 6 minus 5, it is equal to 1. So here we got the value of determinant of A. See, this is the value of determinant of A, hence determinant of A is not equal to 0, hence A inverse exists, hence A inverse exists. Okay, now consider the equation. Now consider the equation A into A inverse is equal to I. Okay, and when you are taking this equation we have to apply row transformations. Okay, so right here what is your A? A is, matrix A is 2 0 minus 1 5 1 0, next is 0 1 3, next is 0 1 3 0 1 3 into A inverse. A inverse is a unknown matrix. A inverse is a unknown matrix. Next, identity matrix of same order as that of A. जो A का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. तो A का ऑर्डर क्या है? 3 by 3 मैट्रिक्स. सो राइट हियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 0 1 0 0 0 1. Okay, next step, convert this matrix A or reduce this matrix A to identity matrix. Reduce this matrix A to identity matrix using elementary row transformations. Okay, now what I told you कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि क्या करने का, ये आपका जो रूट है, ये जो रूट है, तो यहाँ पे वी हैव टू कन्वर्ट दिस फर्स्ट एंट्री इन 1.
ओके। तो यहाँ पे वो एंट्री क्या है 2, सो वी हैव टू रिड्यूस दिस 2 टू 1, हमें ये 2 को 1 में कन्वर्ट करना है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 है, तो अगर आप 2 माइनस 5 करोगे तो -3 आ जाएगा। तो कौन से नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि उसका सब्ट्रैक्शन 1 आ जाएगा? 3। सी 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 6, और 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। ओके, सो यू आर गोइंग टू चेंज R1। सो आपको R1 चेंज करना है, आपको रो 1 चेंज करना है। और रो 1 आप किस में चेंज कर रहे हो? यू आर मल्टीप्लाइंग दिस 2 बाई 3, सो इट इज़ 3 इंटू R1 minus R2. You are going to use the second row. Okay, so it is R1 changes to 3 into R1 minus R2. 3 क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पे 2 है, सो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6, और 6 माइनस 5 आपको एंट्री मिल जाएगा 1. ओके, सो हियर नाउ चेक R2 एंड R2 एंड R3 नो चेंजेस। सो पहले R2 और R3 जैसे है वैसे के वैसे लिख लो। R2 हमने लिख लिया 0 1 3, R3 लिख लिया A इनवर्स, इट इज़ इक्वल टू R2 क्या है? 0 1 0 0 0 1। जो R2 और R3 में कोई भी चेंजेस नहीं है तो वो हम एज इट इज़ रिपीट कर देंगे। R1 में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो अभी देखो। 3 इंटू R1, सो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 इज़ 1, 6 माइनस 5 इज़ 1। नेक्स्ट 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 इज़ माइनस ऑफ 1। नेक्स्ट 3 इंटू -1 -3, -3 माइनस 0, -3 माइनस 0 इज़ माइनस ऑफ 3। नेक्स्ट 3 इंटू R1, सो इट इज़ 3 इंटू 1, जितने भी R1 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से R2 के जो वैल्यूज़ है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 कितना आ गया यहाँ पे? 3। 0, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0 माइनस 1 -1, 3 इंटू 0 0 0 माइनस 0 0। ओके, सो नेक्स्ट ये आपका एंट्री हो गया 1। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंट्री इन 0। ओके, कब 0 होगा ये? 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 का जब आप ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो व्हाट यू विल डू? R2 चेंजेस टू R2 माइनस ये 1 का यूज़ कर लो 5 टाइम्स R1। यहाँ पे 5 है इसलिए R1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 5 से मल्टीप्लाई करोगे। सो R2 5 माइनस 5 टाइम्स 1, 5 माइनस 5 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा? ये एंट्री हो जाएगा आपका 0। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू सी R1 एंड R3 नो चेंजेस। 1 -1 -3 0 1 3 इंटू A इनवर्स, वी आर गोइंग टू चेंज R2। हम सिर्फ R2 को चेंज करने वाले हैं, तो R1 और R3 जैसे है वैसे के वैसे उनके एंट्रीज डाल दो, उनके एलिमेंट्स डाल दो। ओके, सो इट इज़ R2 माइनस 5 टाइम्स R1, 5 माइनस 5 टाइम्स 1 0, 1 माइनस सी, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे कर दो 1 माइनस 5 टाइम्स माइनस ऑफ 1, सो 1 माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस ऑफ 1, 1 प्लस 5 इट इज़ इक्वल टू 6। तो ये एंट्री आपका हो गया 6। ओके, नेक्स्ट 0 माइनस 5 टाइम्स माइनस ऑफ 3, सो इट इज़ इक्वल टू प्लस 15, इट इज़ इक्वल टू प्लस 15। नेक्स्ट 0 माइनस 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3 कितना हो गया? 15, और माइनस है इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 15। 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 5 टाइम्स -1, सेम ही एंट्री आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 -1 सेम है तो यही वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे भी 6। और 0 0 है तो 5 टाइम्स 0 0, 0 माइनस 0 0। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड रो का जो एंट्री था, यहाँ पे जो सेकेंड रो का ये एलिमेंट है ये हो गया 0। ओके, नेक्स्ट वी विल सी, नाउ चेक हियर 1 0 0, फर्स्ट कॉलम तो आपका आ गया 1 0 0। नाउ टू मेक दिस एंट्री 0, ओके, ये एंट्री हमें क्या करना है? 0 करना है। तो अगर आप देखोगे तो -1 + 1, अगर आप R1 का यूज़ करोगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो ये जो एंट्री है 0 + 1, ये एंट्री आपका पहले वाला 0 चला जाएगा। ओके, तो हमें कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं अप्लाई करना है कि जिसमें जो हमने पहले एंट्री जो लाए हैं, जो पहले हमारे एंट्रीज आए हैं
वो चले जाए, कि यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा, नहीं, ऐसे हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं अप्लाई करने हैं कि जिसमें पहले जो हमने एंट्री लाए हैं वो फिर से नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, 0 के नंबर्स आ रहे हैं या फिर 1 किसी अलग नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे कोई भी ऑपरेशंस हमें अप्लाई नहीं करने। तो वी विल नॉट डू हियर R3 प्लस R1, ये ऑपरेशन तो अप्लाई नहीं होगा। ओके, अभी अगर आप देखोगे तो ये एंट्री क्या है, 1 है। ओके, और 1 कहाँ पे लगता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 का पोजीशन कहाँ पे है, थोड़ा आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा शांत रखना पड़ेगा। ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पे 1 का पोजीशन कहाँ पे है, सेकेंड रो में है। 1 का पोजीशन कहाँ पे है, सेकेंड रो में है। ओके, तो आप एक बात कर सकते हो कि ये जो 1 का पोजीशन है, सो यू कैन इंटरचेंज R2 एंड R3, यू कैन इंटरचेंज R2 एंड R3 एंड एज बोथ द एंट्रीज आर 0, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, मैंने जो बोला कि आपने जो पहले एंट्रीज लाए हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो अगर आप R2 इंटरचेंज विद R3 कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होंगे। ओके, सो R2 इंटरचेंजिंग विथ R3, सो इंटरचेंज कर दो, 1 -1 -3, सेकेंड रो आपका हो जाएगा थर्ड रो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 1 3, और थर्ड रो हो जाएगा आपका सेकेंड रो, सो इट इज 0 6 15, 0 6 15 इंटू A इनवर्स, इट इज इक्वल टू 3 -1 0, सॉरी यहाँ पे R2 और R3 इंटरचेंज करें तो ये हो गया 0 0 1, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे -15 6 0, -15 6 0। ओके, नेक्स्ट नाउ 1 0 0 तो हो गया। ओके, ये तो हमने इंटरचेंज कर लिए, दोनों R2 और R3 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ओके, नाउ 1 0 0 हो गया। नाउ टू मेक दिस एंट्री 0, अभी इसको 0 बनाना तो ईजी है। देखो, यू कैन यूज़ दिस टू, ये दो रो हम यूज़ कर सकते हैं। सी R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6 टाइम R2, और यहाँ पे दोनों ही एंट्री 0 है तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, या फिर कोई भी आपको यहाँ पे ये जो दो एंट्रीज है उसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, R2 चेंजेस टू R3, we are going to change R3, so R3 changes to R3 minus 6 times R2, R3 minus 6 times R2, 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 6 था। ओके, so we are going to change R3, so 1 -1 -3 0 1 3, ये दो रो एज इट इज़ इंटू A इनवर्स, इट इज़ इक्वल टू 3 -1 0 0 0 1। ओके, सो R3 माइनस 6 टाइम्स R2, 0 - 0 तो ये 0 ही रहेगा, 6 - 6 इंटू 1, तो 6 - 6 कितना हो गया, यहाँ पे ये एंट्री आ गया 0। ओके, और 15 माइनस, यहाँ पे एक बार चाहिए तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, 15 - 6 इंटू 3, सो 15 - 6 इंटू 3 मतलब 15 - 18, और 15 - 18 कितना हो गया, -3, सो यहाँ पे आपका एंट्री आ गया -3। ओके, नेक्स्ट -15 - 6 इंटू 0, तो ये एंट्री आ जाएगा -15, क्योंकि 0 के साथ आप 6 भी मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आपका वैल्यू रिमेन सेम केसेस एप्लीकेबल हियर, सो ये भी यहाँ पे 6 ही रहेगा। ओके, नाउ 0, R3 क्या है आपका 0, सो 0 - 6 इंटू 1, 0 - 6 इंटू 1, सो इट इज़ इक्वल टू -6, इट इज़ इक्वल टू -6। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे, ये आ गया 1 0 0 0 1, नाउ टू मेक दिस एंट्री 0, ये जो -1 है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 0 कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू चेंज R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, अगर आप ये दोनों का एडिशन करके देखते हो, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, तो जो हमारा पहले का एंट्री जो आ गया है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, सो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 इंटू A इनवर्स, इट इज़ इक्वल टू, ओके, R1 प्लस R2, सो 1 + 0 1, -1 + 1 0, -3 + 3 0, 3 + 0 3, -1 + 0 -1, 0 + 1 is 1। ओके, R1 हमने किस में चेंज कर दिया, R1 प्लस R2 में, ये दोनों जो पहले दोनों रो है वो ऐड कर दिए, R2 में कुछ भी चेंजेस नहीं, 0 1 3,
R3 be as it is 0 0 minus 3 0 0 1 minus 15 6 minus of 6. ओके, तो यहाँ पे आ गया 1 0 0 0 1 0, ये एंट्री भी आपका आ गया 0. ओके, नाउ टू मेक दिस एंट्री 0, टू मेक दिस एंट्री 0 3 माइनस 3, ये दोनों R2 और R3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो R2 changes to R2 plus R3. R2 we are going to change row 2, so row 2 changes to row 2 plus row 3. okay, so it is equal to, हम सिर्फ row 2 change कर रहे हैं तो row 1 और row 3 as it is. so if you want you can write here row 1 and row 3 as it is. पहले ही लिख दो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उनको पहले ही लिख दो, नो प्रॉब्लम. R1 और R3 एज इट इज़ आ जाएंगे. हमें सिर्फ R2 को चेंज करना है, और R2 को किस में चेंज करना है, R2 प्लस R3, R2 प्लस R3. सो हियर इट इज़ 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस माइनस ऑफ 3, सो 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 15 माइनस ऑफ 15, 0 प्लस 6 6, 1 माइनस 6 माइनस ऑफ 5. एडिशन कर लिया हमने, जैसे है वैसे के वैसे टर्म ऐड कर दिए. तो यहाँ पे 1 माइनस 6 आ गया माइनस ऑफ 5. ओके, नेक्स्ट अगर आप ये लास्ट अभी कॉलम लास्ट रो देखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये एंट्री हमें क्या लाना है, 1 लाना है. ओके, नाउ हियर बोथ टर्म्स आर 0, तो हम इनका यूज़ तो नहीं कर सकते. तो लास्ट आपके पास एक ही यहाँ पे ऑपरेशन बचता है कि R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 3. तो अगर आप ये टर्म को -3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका ये एंट्री हो जाएगा 1, तो आपका ये एंट्री हो जाएगा 1. तो आपको पूरे रो 3 को, पूरे R3 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, -3 से. सो हियर इट इज़ फर्स्ट रो 1 as it is 0 1 0 0 0 1, 0 divided by -3 0, 0 divided by -3 0, -3 divided by -3 is 1 into A inverse. A inverse is a unknown matrix जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. 3 minus 1 1 minus 15 6 minus of 5 and divide R3 by minus of 3. So minus 15 divided by -3, minus sign get cancelled, 3 5s are 15. okay, 6 divided by -3, 6 divided by -3, so यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू minus of 2. -6 divided by -3, minus sign get cancelled, 2. okay, so what is this? It is converted to identity matrix. So identity matrix into A inverse is equal to 3 minus 1 1 minus 15 6 minus of 5 5 minus 2 2. okay, and what is identity matrix into any matrix? Identity matrix into any matrix is matrix itself. okay, तो यहाँ पे hence what you can write, एक्चुअली इधर ही लिखना है आपको. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ. सो हियर योर आंसर इज, तो जो आपका आंसर है 3 minus 1 1 minus 15 6 minus of 5 5 minus 2 2. It is a required inverse for your matrix. It is a required inverse for your given matrix. okay, 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो हमें अभी इसमें समझ में आ गया है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड प्रॉब्लम, जो कि है फिर वो भी है 3/3 मैट्रिक्स का ही. ओके, so how to find the inverse of this matrix? So solution, I am starting with the solution. First step is find the determinant of A. So it is equal to 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4. So find the determinant. So 1 into, remove this row and column, 1 into 4 4 minus 4, 2 into 2 is 4. Second entry with minus sign, so minus of 2. So it is minus 1 into 4 is minus 4 minus 2 plus 3 into, सी जो रो और कॉलम है वो निकाल दो, तो बाकी जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकालो. तो -2 minus of 1, so it is equal to 4 minus 1 4 minus 4 0, -2 -6 -2 -1 हो गया यहाँ पे minus of 3. so ये एंट्री हो गया 0 plus 12 minus of 9, so it is equal to 3. 12 minus 9 is equal to 3. hence determinant of A is not equal to 0. determinant of A का वैल्यू क्या आ गया 3, and 3 is a non-zero scalar. so determinant of A is not equal to 0. hence A inverse exists. A inverse exists.
Now consider the equation A into A inverse is equal to I. A into A inverse is equal to I. Okay. Now we will put here value for A. A का value put कर दो. A का value क्या है? 1 2 3 minus 1 1 2 1 2 4 into A inverse. It is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay. It is I means what? Identity matrix of same order as that of A. Okay. Now here if you say this first entry is already 1, जैसे हमें ये रूट से जाना है तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 1 आ गया है, तो उसे हमें फिर से 1 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं. नाउ वी विल मेक दिस एंट्री 0. हम क्या करेंगे? ये एंट्री को 0 करेंगे. So we will do R2 changes to, we are going to change R2. So R2 changes to R2 प्लस R1 कर सकते हो या फिर R3 भी आप कर सकते हो. सी यू कैन यूज़ R1 ऑल्सो और R3 ऑल्सो. क्यों आप दोनों यूज़ कर सकते हो? क्योंकि R1 का अगर आप यहाँ पे एंट्री देखोगे, R1 का एंट्री भी 1 ही है और R3 का एंट्री भी 1 ही है. सो यू कैन यूज़ R1 ऑल्सो और R3 ऑल्सो. आई हैव यूज हियर R1. सो R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1. -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0. सो वी आर गोइंग टू चेंज R2. सो 1 2 3 R1 एज इट इज़, R3 एज इट इज़, R3 भी एज इट इज़ आ गया इंटू A इनवर्स. क्यों हमने लिखा? बिकॉज वी आर गोइंग टू चेंज ओनली R2. R1 और R3 में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो R1 और R3 जैसे है वैसे के वैसे पहले लिख लो, कॉपी कर डालो उनको. ओके. R2 प्लस R1, -1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 1 + 0 और 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0. Okay. Next we have to make this entry 0. Like this we have to go. So to make this entry 0, R3 changes to R3 minus R1. 1 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0. तो आप क्या चेंज करने वाले हो? R3. सो रो 1 और रो 2 एज इट इज़, 1 2 3 0 3 5 into A inverse. It is equal to 1 0 0 1 1 0. R1 और R2 में कुछ भी चेंजेस नहीं. चेंजेस किस में हो रहे हैं? सिर्फ R3 में. और क्या चेंजेस हो रहे हैं? R3 से आप R1 को माइनस कर रहे हो. ओके. सो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 3 is 1, 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 is 1. ओके. नेक्स्ट इसके आगे अभी क्या करना है? ओके. Now if you check, you see 1 0 0 0 1 0. To make this entry 1. Now we have to make this entry 1. ओके. तो ये 1 कैसे होगा? 3 - 2 आप अगर कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा. लेकिन आप यहाँ पे अगर देखोगे 0 - 1, 0 - 1, तो आपका ये एंट्री चला जाएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा -1. तो मैंने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी बताया आपको कि आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने हैं कि जिसमें जो स्टार्टिंग के जो पहले हमने जो एंट्रीज निकाले हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए. अगर वो चेंज हो रहे हैं तो आप 4 पेज 5 पेज 6 पेजेस लगा लो, आपका इन्वर्स नहीं आएगा. ओके. आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे. सो जो आपके पहले एंट्री आ गए हैं उनको आपको हाथ नहीं लगाना है, वो चेंज नहीं होने चाहिए. ये एक बेसिक रूल है मैट्रिसेस का, टू फाइंड द इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ओके. तो इस एंट्री को हमें क्या करना है? 1 करना है. ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते. ओके. इसको भी हम मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो इंटरचेंज करके भी कुछ फ़ायदा नहीं. ओके. तो सब बस एक ही ऑपरेशन अभी यहाँ पे बचता है. सी वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय 3. ओके. आपको ये जो R2 है उसको आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. उसको आपको 3 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा पूरे R2 को. सो रो 1 एज इट इज़ 1 2 3 इंटू A इनवर्स, इट इज़ इक्वल टू, ओके. और रो 3 भी एज इट इज़ 0 0 1. हम क्या चेंज करने वाले हैं? R2. तो यहाँ पे जो रो 1 और रो 3 है वो एज इट इज़ रिपीट कर दो. 0 डिवाइडेड बाई 3 0, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 5 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 5/3, 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 1/3, 1/3 एंड दिस एंट्री इज 0. ओके. तो हमने R2 को क्या कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया. R2 को क्या कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया. क्यों 3 से डिवाइड कर दिया? टू मेक दिस एंट्री 1. तो यहाँ पे हमें ये एंट्री आ गया, यहाँ पे एलिमेंट आ गया 1. ओके. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू,
1 0 0 0 1 0. Now we have to make this entry 0. So what we will do, r1 changes to r1 minus 2 times r2. r1 changes to r1 minus 2 times r2. ओके, यहाँ पे 2 है इसलिए हम यहाँ पे 2r2 से माइनस कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू चेंज r1. ओके, तो रो 2 एज इट इज 0 1 5/3 0 0 1 इंटू ए इनवर्स. यहाँ पे रो 2 क्या है आपका 1/3 1/3 0 -1 0 1. ओके, so what we will do here, r1 minus 2 times r2. so 2 into 0 0 1 minus 0 is 1. ओके, देखो पहला एंट्री हमारा चेंज नहीं हुआ है. हमने ऐसा ऑपरेशन अप्लाई किया है कि जो पहले एंट्रीज आए हुए हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए. r2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 इंटू 1 2 2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 0. ओके, नेक्स्ट 3 माइनस सी, r1 क्या है यहाँ पे 3. सो 3 माइनस 2 टाइम्स r2. r2 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 3. सो इट इज़ इक्वल टू 3 माइनस 5 टू द 10 डिवाइडेड बाई 3. सो 3 इंटू 3 9 माइनस 10/3. सो इट इज़ 9 माइनस 10/3 मतलब क्या आ जाएगा ये माइनस ऑफ 1/3. तो ये एंट्री आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/3. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो साइड में कैलकुलेशन करके देख लेने का. ओके, नेक्स्ट 1 माइनस सी, हियर इट इज़ 1 माइनस 2 इंटू r2. r2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3. सो 1 माइनस 2/3 3 इंटू 1. सो इट इज़ 3 माइनस 2/3 1/3. सो दिस वैल्यू इज़ 1/3. नेक्स्ट 0 माइनस 2 इंटू 1/3. सो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2/3. और दोनों एंट्री 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0. सो इट इज़ 0 माइनस 2 इंटू 0 0. ये एंट्री आ जाएगा 0. ओके, नेक्स्ट 1 0 0 0 1 0. नाउ टू मेक दिस एंट्री 0. ओके, वी विल यूज़ दिस 1. ये 1 का हम यूज़ करेंगे. सो देखो r1 चेंजेस टू r1. यहाँ पे माइनस ऑफ 1/3 है. माइनस ऑफ 1/3 में प्लस 1/3 ऐड करना पड़ेगा. तो आप r3 को क्या करोगे, आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो प्लस 1/3 इंटू r3. क्यों हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज हियर इट इज़ माइनस ऑफ 1/3. तो माइनस के साथ प्लस 1/3 डालोगे तो आपका एंट्री हो जाएगा ये 0. ओके, सो इट इज़ इक्वल टू सी, आप चेंज करने वाले हो r1. सो r2 एज इट इज़ 0 1 5/3 0 0 1. हम r1 चेंज करने वाले हैं इंटू ए इनवर्स. इट इज़ इक्वल टू r2 क्या है 1/3 1/3 0 -1 0 1. ओके, सो r1 चेंजेस टू r1 प्लस 1/3 टाइम्स r3. सो 1/3 टाइम्स 0 0. सो 1 प्लस 0 1. ये तो दोनों 0 ही है तो ये एंट्री आ जाएगा 0. माइनस 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1 इज 1/3. सो माइनस 1/3 प्लस 1/3 ये एंट्री हो गया आपका 0. ओके, नाउ हियर इट इज 1/3 प्लस 1/3 इंटू माइनस ऑफ 1. सो 1/3 माइनस 1/3 दिस एंट्री इज ऑल्सो 0. नेक्स्ट माइनस ऑफ 2/3. सी, r1 क्या है माइनस 2/3 प्लस 1/3 इंटू r3. r3 क्या है 0. सो ये आंसर आ गया माइनस ऑफ 2/3. माइनस ऑफ 2/3. एंड हियर इट इज़ 0 प्लस 1/3 इंटू r3. तो ये वैल्यू आ गया आपका 1/3. ये वैल्यू आ गया आपका 1/3. ओके, कैलकुलेशन करके देख लेने का एक बार साइड में. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5/3 इंटू 0. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. टू कन्वर्ट दिस इन 0 वी विल मल्टीप्लाई r3 बाई 5/3 और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे r2 में से. सो r2 changes to r2 minus 5/3 times r3. 5/3 times r3. ओके, 5/3 times r3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 5/3 है. सो इट इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 0. दोनों एंट्री 0. 1 में से माइनस 5/3 इंटू r3. 5/3 इंटू 0 0. 1 माइनस 0 1. 5/3 इंटू 1 5/3. 5/3 माइनस 5/3 0 0 0 1. हम सिर्फ r2 चेंज करने वाले हैं. रो 1 रो 3 एज इट इज़. ओके, रो 1 एज इट इज़, रो 3 भी एज इट इज़. वी आर गोइंग टू चेंज r2. सो रो 2 1/3 माइनस 5/3 इंटू माइनस ऑफ 1. सो इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5/3.
सो डिनोमिनेटर 3, 5 + 1 6, तो ये आपका ये जो वैल्यू है वो आ गया 2। ओके, 1 माइनस 5/3 टाइम्स 0, 5/3 टाइम्स 0 0, सो 1/3 में से माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू 1/3। 0 माइनस 5/3 टाइम्स 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -5/3। ओके, एंड दिस इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 0 minus of 2/3, 1/3, 2, 1/3, minus of 5/3, -1, 0, 1. Okay, so identity matrix into any matrix is matrix itself. तो A इनवर्स का आपका वैल्यू हो गया 0 माइनस ऑफ 2/3, 1/3, 2, 1/3, माइनस ऑफ 5/3, -1, 0, 1. ये भी आपका इन्वर्स हो सकता है। और आप क्या कर सकते हो, ये जो डिनोमिनेटर के 3 है, अगर आप ये कॉमन कर लोगे तो सब में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 अगर आप कॉमन कर लेते हो तो ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा -2, हियर इट इज़ 1। सी यू आर टेकिंग 1/3 कॉमन, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 6। यहाँ पे आपको देखो 3 से अगर आप यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में ले रहे हो तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ से 3 चला गया 1, यहाँ पे आ जाएगा -5, दिस यू विल राइट एज -3, 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, जहाँ पे 3 नहीं था डिनोमिनेटर में उसको हमने न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो 1/3 इंटू 0 0, हियर इट इज़ -2/3, 1/3 इंटू 1 1/3, 1/3 इंटू 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2। ठीक है, -5/3, -1, सी 1/3 इंटू -3, 1/3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -1, 1/3 इंटू 0 हो जाएगा 0, 1/3 इंटू 3 हो जाएगा 1। ओके, तो अगर आप ये भी आंसर लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको 1/3 कॉमन निकालना है, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है ऊपर के नंबर लिख दो, और जहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 नहीं है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर को आप। तो ये जो 3 नंबर थे इनको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, तो दोनों में से कोई भी आंसर अगर आप लिखते हो एग्ज़ाम में, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो मैंने 2 टाइप के यहाँ पे अभी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। एक तो सिंपल प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल, जिसमें हम डायरेक्ट सॉल्व करते जा रहे थे। इसमें भी हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक स्टेप आ गया कि जिसमें हमें रो 2 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ा। तो आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन एक्चुअली इजी है, लेकिन थोड़ा फ्रैक्शंस में आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन यू विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस इज इनवर्स ऑफ अ matrix using elementary transformation method. How to find inverse of a matrix using elementary transformation method of matrix of order 3, matrix of order 3. okay, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 था उसका इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके कैसे निकालते हैं वो बताया है। सो प्लीज़ गो थ्रू बोथ द वीडियोज़। थैंक यू।